હેલો મિત્રો, કેમ છો? આઈ હોપ તમે સૌ મજામાં હશો। મિત્રો, આ વિડીયોમાં આપણે જોવા જઈ રહ્યા છીએ ધોરણ 12 માટે હિન્દી માટે પ્રથમ પરીક્ષા માટે તમારી 2024ની પ્રથમ પરીક્ષા માટે 3 મોસ્ટ આઈએમપી પેપરના સોલ્યુશન, સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે જોઈશું। 2022નું પેપર, 2021નું પેપર, ત્રીજું પેપર પણ 2021નું છે, જે થોડું અલગ છે। ત્રણે ત્રણ પેપર આપણે ત્રણ પેપર આ વિડીયોમાં જોવાના છીએ। સંપૂર્ણ સોલ્યુશન હું તમને પ્રોવાઈડ કરાવવાનો છે અને ગ્રામરના સોલ્યુશન સાથે। તો તમારી જે ગ્રામરની પ્રેક્ટિસ છે હિન્દીમાં એ આ જ વિડીયોમાં થવા જઈ રહી છે, તો તમારે સંપૂર્ણ વિડીયો જોઈ લેવાનો છે। ત્રણે ત્રણ પેપરમાં જે પણ પ્રશ્નો આપેલા છે, ગ્રામર આપેલા છે, ગ્રામરના જે ટોપિક આપેલા છે એ તમારે સારી રીતે વાંચી લેવાના છે, તૈયાર કરી લેવાના છે। અને આની સાથે આપણે હિન્દી માટે આઈએમપી વિડીયો તો આપ્યો છે, આઈએમપી પ્રશ્નો અને નિબંધ મેં આપી દીધું છે પહેલાંથી। ચેનલ ઉપર તમને મળી જશે, વિડીયો જોઈ લેજો, ખૂબ જ જરૂરી છે તમારે જો આ વખતે વધુ માર્ક્સ લાવવા હોય તો। આપણે 2024ના પેપર માટે આને આઈએમપી પેપર તરીકે એનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ। આ 2024નું ઘણા કોમેન્ટ કરતા હોય છે કે આ 2024નું પેપર નથી। 2024નું પેપર અત્યારે ન હોય, એ હજી તમે પરીક્ષા આપશો એટલે આવશે। આ પેપરોનો આપણે ઉપયોગ તમારા જે 2024નું જે પેપર હશે એમાં આઈએમપી પેપર તરીકે ઉપયોગ કરીશું, કારણ કે ઘણા બધા પ્રશ્નો રિપીટ થતા હોય છે। તો તમારે એમાંય 3 પેપર તમને પ્રોવાઈડ કરાવવામાં આવી રહ્યા છે, તો 3માંથી ઘણું બધું રિપીટ થઈ શકે છે, તો તમારે તૈયાર કરી દેવાનું છે। ચેનલ ઉપર હરતા ફરતા આવી ગયા હો પહેલી વખત તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, કારણ કે આવું જ કન્ટેન્ટ તમને આ ચેનલ ઉપર મળતું રહેશે। વિડીયો લાઇક કરી દેજો। ચાલો આપણે જોઈ લઈએ, વિભાગ એથી શરૂઆત કરી લઈએ। પહેલાં 2022નું પેપર જોઈ લઈએ। विकल्प आप्यो છે, शहादत अली ने अपनी आधी जायदाद किसे दे दी थी? तो कर्नल को। आयोडीन रेडियम के बीच क्या रिश्ता था? पिता पुत्र का। गांधी जी को सिक्रम में कहाँ बैठाया गया? कोचवान की बगल में। एना પછી એક જોડકું આવતું હોય છે કારતૂસ, તો ત્રીજા નંબરનું આવશે એકાંકી છે કારતૂસ। અને રેડિયમ की આત્મકથામાં પહેલું આવશે વિજ્ઞાન કથા છે। एक मार्क्स ना प्रश्न, अब्दुल्ला सेठ ने किससे तार किया था? तो अब्दुल्ला सेठ ने चार्ल्स टाउन के पते पर शिक्रम वाले को तार किया था। वंशीधर ने पुल पर क्या देखा? तो वंशीधर ने पुल पर गाड़ियों का ढेर दूसरी तरफ जाते हुए देखा। गांव का पुश्तैनी घर क्यों बंद रहता था? गांव के घर के सभी लोग शहर में बस गए थे और वही काम करते थे, इसलिए गांव का पुश्तैनी घर बंद रहता था। सुमा बुआ की बेटी का नाम था क्या था? हरखू था, हरखू भाई। एना पछी તમે જોઈ શકો છો 2 માર્ક્સના પ્રશ્નો છે। લેખક को क्यों लगा कि माँ का हृदय अभी जीवन है? पाठ नंबर 6 નો પ્રશ્ન છે, ટીક કરી दो बुकમાં, तैयार કરી દેવાનો છે। सोमा बुआ पिछले 20 साल से कैसा जीवन जीती थी? पाठ नंबर 4 में है, टिक करी दो। हिंदुस्तानी भाइयों ने गांधी जी से क्या कहा? पाठ नंबर 8। चार्ल्स टाउन के से जोहानिसबर्ग कैसे पहुंचा जाता था? पाठ नंबर 8 में मળી જશે। मोटो प्रश्न તમે જોઈ શકો છો, 2 પ્રશ્નો છે। पंडित आलोपीदीन ने वंशीधर को जायदाद का स्थायी मैनेजर क्यों नियुक्त किया? पाठ नंबर 2। रेडियम की उत्पत्ति का सविस्तार वर्णन, पाठ नंबर 12। वजीर अली एक जाबाज सिपाही था, इस कथन को स्पष्ट कीजिए, पाठ नंबर 10 में तमने मળી જશે। विभाग बी તમે જોઈ શકો છો, लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। जब बादल को गिरते देखा तब किस ऋतु का प्रभाव था? तो वसंत ऋतु का। हम सबर क्या कर रहे थे? हम सबर ઊંઘે हुए थे। એના નીચે તમે જોઈ શકો છો, હવે આવે છે એક જોડકું, જો બીત ગઈ સો બાત ગઈ, એમાં બીજા નંબરનું આવશે હરિવંશરાય બચ્ચન। તો હિન્દીમાં પણ ગુજરાતીની જેમ લેખકના નામ પૂછાય છે, સાહિત્ય પ્રકાર પૂછાય છે, તો અનુક્રમણિકા જરૂરથી તૈયાર કરી દેજો। બાળકી સંભાવનાएं, તો એ છે દુષ્યંત કુમારનું। यानी नीचे 1 मार्क्स ना प्रश्न, कृष्ण किस राग में गीत गा रहे थे? धमार। बालक भरत के माता पिता कौन थे? तो शकुंतला माता और दुष्यंत उनके पिता। कवि ने कमल को किस रंग का बताया? तो स्वर्ण रंग का बताया है। कृष्ण गले में किसकी माला पहनते थे? कृष्ण गले में लाल 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 दानों की कुंची आवशो के कुंची के लाल दानों की माला, कुंची के लाल दानों की माला पहनते थे। 2 मार्क्स ना प्रश्न, कवि ने किरणों और शिखर को कैसा बताया है? पाठ नंबर 7। आदमी को झुंझुना कहने का क्या तात्पर्य है? पाठ नंबर 9। बालक ने क्रोधी सिंहनी से क्या कहा? पाठ नंबर 5। અને શકુંતલા अपने पति से क्यों बिछड़ गई थी? पाठ नंबर 5 में તમને મળી જશે। नीचे मोटो प्रश्न, मधुगट और मनुष्य जीवन में क्या समानता पाई जाती है? स्पष्ट करें, पाठ नंबर 11। ब्रज में कृष्ण द्वारा होली खेलने का वर्णन, पाठ नंबर 1। અને કૃષ્ણ के स्वांग में गोपियों का वर्णन, पाठ नंबर 3 में તમને મળી જશે। વિભાગ સી જોઈ લઈએ, એકવાર વિડીયો લાઇક કરી દેજો, ઘણી બધી મહેનત પછી તમારા માટે પેપર સોલ્વ કરવામાં આવ્યા છે। પહેલા તો સમાનાર્થી, નવલ એટલે કે નવીન અને અન્મના એટલે કે ઉદાસ અથવા તો ખિન્ન।
વિલોમ શબ્દ મુમકિન તો નામુમકિન અને ઉપર તો આવશે નીચે. પછી તત્સમ રૂપ આપવાના છે. કભી તો આવશે કદાચિત કદાચિત અને આંસુ એટલે આવશે અશ્રુ. શબ્દ કે પ્રત્યય યા ઉપસર્ગ લીખીએ. પ્રત્યય અથવા તો ઉપસર્ગ. નિર્ણય આવશે, નિર્ણય જે છે એનું આવશે નિસ વત્તા નય અને ખામોશીમાં આવશે ખામોશ વત્તા ઈ. शब्द समूह તમે જોઈ શકો છો. वह घाव जिससे मवाद निकलता रहता है तो उसे कहते हैं नासूर. क्या कहते हैं? नासूर. हिमालय पर स्थित पवित्र झील जिसको कहते हैं मानसरोवर. શુદ્ધ વાક્ય કરવાનું છે. આપકી ટિકિટ રદ હો ચુકી હૈ તો આપકીની જગ્યાએ આવશે આપકા. આપકા. આપકા ટિકટ રદ હો ચુકા. ચૂકીની જગ્યાએ ચૂકા. ફરી પાછળ જે છે કા આવશે. ઓકે. આપકા ટિકટ રદ હો ચુકા હૈ. कहावत છે जो बीत गई सो बात गई अतीत की दुख भरी बातें भूल जाना ही अच्छा है. મુહાવરેનો અર્થ આપવાનો છે ને એનો વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો છે. ભૂલતા નહીં, વાક્ય પ્રયોગ પરીક્ષામાં કરી દેજો. મીઠે બોલ બોલના यानी प्यार से बातें करना और नींव हिला देना जड़ या आधार कमजोर करना. नीचे હવે एक वाक्य में તમે જોઈ શકો છો पुस्तकालय पुस्तकों के आलय क्यों है क्योंकि पुस्तकालय में बहुत सारी पुस्तकें संग्रही होती है भिन्न भिन्न प्रकार की. भिन्न भिन्न लेखकों द्वारा जो भी पुस्तक हमें चाहिए वो पुस्तकालय में मिल जाती है. एक तरह से पुस्तकों का वो घर है इसलिए पुस्तकालय पुस्तकों का आलय है. ओके. हार्डवेयर किसे कहते हैं? हार्डवेयर यानी कि कंप्यूटर के जिस भाग को हम छू सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं. जैसे कि कंप्यूटर का मॉनिटर, माउस, कुंजी पटल आदि को हार्डवेयर कहा जाता है. शब्दकोश किसे कहते हैं? शब्दकोश शब्दों की उत्पत्ति के बारे में बताता है, उसका अर्थ बताता है तो उसे शब्दकोश कहते हैं जिसमें हर शब्द का वर्णन किया जाता है. पोस्ट कार्ड क्या होता है? तो पोस्ट कार्ड 14 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर एकल पत्र होता है. एकल जवाबी पत्र व्यवहार होता है और इस पर खुला संदेश लिखा जाता है और जो सिर्फ भारत में चलता है. એની નીચે વિભાગ ડી તમે જોઈ શકો છો. સંદર્ભ સમજાવવાની છે તમારે. સંદર્ભ વ્યાખ્યા સમજાવવાની છે. તમારા પાઠમાંથી પંક્તિ મૂકેલી છે જેને તમારે વિસ્તૃત સમજાવવાની છે. પછી નીચે આવે છે તમારે સારાંશ લખી એનું ઉચિત શીર્ષક આપવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો जीवन में साहित्य की उपयोगिता अनिवार्य है तो साहित्य की उपयोगिता તમે ટાઇટલ આપી શકો છો. બાકી અંડરલાઇન કરેલી છે એ રીતના તમારે ત્રીજા ભાગમાં સંક્ષિપ્તીકરણ. એની નીચે તમે જોઈ શકો છો ફકરા ઉપરથી જવાબો શોધવાના છે. लेखक का हृदय कब फटता है? तो लेखक जब देखते हैं कि समाज में हमारी संस्कृति के मौलिक सिद्धांतों की अवहेलना जब समाज हमारी संस्कृति के मौलिक सिद्धांतों की अवहेलना करता है तब लेखक का हृदय फटता है. लेखक हमसे किस बात का हमेशा ध्यान रखने के लिए कहते हैं? तो लेखक संस्कृति के मौलिक सिद्धांतों को सदैव साथ रखने के लिए हमें कहते हैं. संसार के सारे सुख कैसे होते हैं? तो संसार के सारे सुख क्षण भंगुर एवं अस्थायी होते हैं. मनुष्य का सब कुछ कब नष्ट हो जाता है? चरित्र नष्ट होने से मनुष्य का सब कुछ नष्ट हो जाता है. અને શીર્ષક તો તમે જોઈ શકો છો ચરિત્ર કા મહત્વ. વિભાગી તમે જોઈ શકો છો એક તમારે વાર્તા લખવાની છે. સાવ સરળ હોય છે. 5 માર્ક્સની હોય છે વાર્તા. અને નીચે આવે છે પછી નિબંધ. મેરા પ્રિય કવિ અથવા લેખક, મોબાઈલ ઓર યુવા, એક સૈનિક કી આત્મકથા. તો અહીંયા 2022નું પેપર પૂરું થાય છે. હવે આપણે જોઈ લઈએ 2021નું પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન. ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ હજુ સુધી ન કરી હોય તો કરી લેજો અને વિડીયો સંપૂર્ણ જોજો, સોલ્યુશન જોજો. તમારી ગ્રામરની પ્રેક્ટિસ પણ થઈ જશે. વિભાગ એ તમે જોઈ શકો છો. પહેલું છે पंडित अलोपी दिन को किस पर अखंड विश्वास था? लक्ष्मी जी पर. शुमा बुआ के मृत पुत्र की एकमात्र निशानी क्या थी? अंगूठी. गांधी जी को शीघ्र में कहा बैठा गया? कोचवान की बगल में. પછી જોડકું છે કારતૂસ. તો એમાં ત્રીજો નંબરનું આવશે વઝીર અલી. એમાં પાત્ર હોય છે. નમક કા દારોગા તો એમાં વંશીધર પાત્ર હોય છે. एक मार्क्सના प्रश्न वंशीधर ने पुल पर क्या देखा? तो गाड़ियों का ढेर दूसरी तरफ जाते हुए देखा. अकेली कहानी का प्रमुख पात्र अकेली नहीं आवे, અહીંયા અકેલી આવશે. એમાં આવશે સોમાબુઆ. ગાવ કા પુસ્તકની ઘર બંધ ક્यों રહેતા હતા? તમે જોઈ શકો છો 2021ના પેપરમાં પણ 2022નું ઉપર આપણે જોયું એમાંથી ઘણા બધા પ્રશ્નો રિપીટ થયેલા છે. એટલે કે 2021ના પેપરમાંથી 2022ના પેપરમાં ઘણા બધા ક્વેશ્ચन रिपीट થયા છે. गांव का पुश्तैनी घर बंद क्यों रहता था? क्योंकि घर के सभी लोग शहर में स्थायी हो गए थे तो इसलिए. जोहानिसबर्ग पहुंचने के लिए एक रात कहाँ रुकना पड़ता था? स्टैंडर्टन.
પછી 2-3 વાક્यમાં उत्तर। शोमा बुआ पिछले 22 साल से कैसा जीवन जीती थी, पाठ नंबर 4। वृद्ध मुंशी जी क्यों फूले न समाये, पाठ नंबर 2। घर न बेचने के निर्णय के बाद लेखक को कैसा एहसास हुआ, पाठ नंबर 6। कर्नल हक्का बक्का क्यों रह गया, पाठ नंबर 10 में तमने मळी जशे। मोटा प्रश्न तमे जोई शको छो। रेडियम की उपयोगिता के बारे में अपने विचार लिखिए, पाठ 12। शोमा बुआ का चरित्र चित्रण, पाठ 4। वजीर अली एक जाबाज सिपाही था, कथन ने स्पष्ट करवानुं छे, पाठ नंबर 10। विभाग बी तमे जोई शको छो। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। एना पछी 16मुं छे, हम सफर क्या कर रहे थे, तो ऊँघे हुए हैं। बालक किसके आश्रम में पढ़ रहा था, कश्यप ऋषि के। एना पछी जोड़कू तमे जोई शको छो। जो बीत गई सो बात गई, तो ये छे हरिवंश राय बच्चननुं। बादल को गिरते देखा, ये छे नागार्जुननुं। 1 मार्क्सना प्रश्नों। कृष्ण किस राग में गीत गा रहे थे, तुम्हारा आवश्य। बालक भरत के माता पिता कौन थे, शकुंतला और दुष्यंत। कवि ने कमल को किस रंग का बताया, स्वर्ण। घर कहाँ बने हुए हैं, नदी के किनारे। एना पछी 2-3 वाक्य में बालक ने क्रोधित सिंह से क्या कहा, पाठ नंबर 5। सितारे के रूपक से कवि क्या समझाना चाहते हैं, पाठ नंबर 11। गोपिया कृष्ण का कौन सा स्वांग रचती है, पाठ नंबर 3 आवशे। हंस किससे उबरकर शीतलता प्राप्त करने आते हैं, पाठ नंबर 7 में तमने मळी जशे। मोटा प्रश्न, भारत श्री रत्न भरत कविता का भावार्थ, पाठ नंबर 5। ब्रज में कृष्ण द्वारा होली खेलने का वर्णन, पाठ नंबर 1। कवि सोए हुए साथियों को तड़पती हुई गजल क्यों सुनाता है, तो पाठ नंबर 9 में तमने मळी जशे। विभाग सी जोई लईए आपणे। घूस एटले रिश्वत, निर्भीक एटले निडर, नाजुक एटले कठोर, एनो विरुद्धार्थी छे। नाजुक तो कठोर, भाग्य तो दुर्भाग्य। तत्सम रूप कामનું થશે કાર્ય, કામનું શું થશે કાર્ય, અને દર્શનનું થશે દર્શન। એના પછી પ્રત્યય તમારે લખવાનું છે ભારતીય વત્તા તા અને કવિ વત્તા ત્વ। શબ્દ સમૂહ છે નઈ વૈજ્ઞાનિક खोज, એને કહેવાય છે આવિષ્કાર। ગાયો का समूहને કહે છે गोधन। એની નીચે વાક્ય સુધારવાનું છે કે यह मेरा जन्म भर का कमाई है, तो यह मेरी जन्म भर मह मेरी, ओके, म પછી રી આવશે। यह मेरी जन्म भर की, कानी जग्याए શું આવશે, की આવશે। जन्म भर की कमाई है। कहावत છે नाच न जाने अंगन टेढ़ा, यानी कि कोई काम न जानने पर अपनी असमर्थता छुपाने के लिए बहाने बनाना। मुहावरोનો અર્થ આપી એના વાક્યનો પ્રયોગ કરવાનો છે તમારે। नींव हिला देना, जड़ या आधार कमजोर करना। फूला न समाना, यानी कि बहुत प्रसन्न होना। फरी पाछू ए ज छे पुस्तकालय, पुस्तकालय આપણે ઉપર સમજાવી દીધું। सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ है जानकारी या ज्ञान की तकनीक। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को मनाया जाता है। पोस्ट गार्ड આપણે ઉપર કહી દીધું અને લખેલું પણ છે, તો એ જ ક્વેશ્ચન બે તો રિપીટ થઈ ગયા છે આમાંય। હવે વિભાગ ડી આપણે જોઈ લઈએ। એક તો આપેલી હશે તમને અહીંયા સંદર્ભ સમજાવવાની છે તમને ઉપરની, જે 2022માં પણ આજ પૂછી હતી, 2021માંથી ઉઠાઈને, એ તમે જોઈ શકો છો। પછી એક વાર્તા આપેલી છે અહીંયા, એ પણ જોઈ શકો છો। પછી પણ ચરિત્રનો જ છે અહીંયા, તમે આપણે ઉપર જે જોયું એ જ રીતના અહીંયા પણ ચરિત્રનું છે, જે તમે જોઈ શકો છો। અહીંયા ટીક કરેલું છે તો તમને કંઈ તકલીફ પડશે નહીં, એના કરતાં થોડોક અલગ છે ફકરો, પરંતુ ટીક કરી દીધું છે, નંબર પણ આપી દીધા છે। નીચે વિભાગ ઈ તમે જોઈ શકો છો। એક વાર્તા તમારે લખવાની છે અને પછી આવે છે નિબંધ આવે છે। एक विधवा की आत्मकथा, यदि मैं प्रधानमंत्री होता और देश के प्रति युवकों का कर्तव्य। આપણે અહીંયા ઉપર જે કહ્યું વાર્તા આ રહી છે ત્રીજા ભાગમાં સંક્ષિપ્તકરણ, 1/3 ત્રીજા ભાગમાં તમારે સંક્ષિપ્તીકરણ કરી શીર્ષક આપી દેવાનું છે। હવે આપણે જોઈ લઈએ છેલ્લું 2021નું એક બીજું પણ પેપર છે, જે જોવું બહુ જરૂરી છે, સોલ્યુશન સાથે છે। ચાલો, વિભાગ એ તમે જોઈ શકો છો। नमक की गाड़ियाँ किसकी थी, पंडित अलोपीदीन की। शोमा बुआ का पति क्यों तीर्थवासी हुआ, तो पुत्र की मृत्यु से दुखी होकर। एना पछी छे बंद रहने के कारण पुराना घर कैसा हो जा रहा था, जर्जरित। अकेली कहानी की लेखिका का नाम मनु भंडारी। पंडित अलोपीदीन को किस पर अखंड विश्वास था, लक्ष्मी जी पर। लेखक के पिताजी घर बनाने के लिए कहाँ चिकनी मिट्टी लाते थे, कहाँ से, तो आंबा तालाब से। शोमा बुआ के मृत पुत्र की एकमात्र निशानी अंगूठी थी। पंडित अलोपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। जोड़कू आपेलू है नमक का दारूगामा त्रीजा नंबरનું આવશે। प्रेमचंद એમના લેખક છે। રેડિયમ की આત્મકથાના લેખક છે મહાવીર પ્રસાદ દ્વિવેદી। 1 માર્ક્સના પ્રશ્નો।
11मो प्रश्न है, रेडियम की उत्पत्ति किस पदार्थ से हुई है? तो विच ब्लेडिन खनिज से। सुमाबुआ की बेटी का नाम हरखू था। हरखू भाई गांव का पुस्तैनी घर बंद क्यों रहता था? આપણે ઉપર 2 વખત કહી દીધું। वंशीधर की माता की कौन सी कामना मिट्टी में मिल गई? तो जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामना। એના નીચે આપણે 2 માર્ક્સના પ્રશ્નો જોઈ લઈએ। વૃદ્ધ મુंशी क्यों फूले न समाये? पाठ नंबर 2। सुमाबुआ पड़ोस वालों के घर कैसे प्रसंग पर पहुंच जाती थी? वे क्या करती थी? पाठ नंबर 4। घर न बेचने से निर्णय के बाद लेखक को कैसा एहसास हुआ? पाठ नंबर 6। घाव पर रेडियम किस प्रकार उपयोगी होता है? पाठ नंबर 12। अनंत शून्य में रेडियम की स्थिति पाठ नंबर 12 में तमने मળી जशे। मोटो प्रश्न તમે જોઈ શકો છો। रेडियम की उपयोगिता के बारे में अपने विचार लिखिए। पाठ नंबर 12। पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व का परिचय पाठ नंबर 2 में तमने मળી जशे। હવે આપણે વિભાગ બી જોઈ લઈએ। ओलूरी का अर्थ है माफी। कृष्ण किसके हो गए? बांसुरी के। गोपिया किसकी बनी माला पहनेंगी? गुंजा की। बालक भरत किसके आश्रम में पढ़ रहे थे? तो कश्यप के। हम सबर क्या कर रहे थे? ऊँघे हुए थे। घणी वक्त पूछाय छे हम सबर वाळो। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था। कौन सी संभावनाएं सामने है? बाढ़ बालक भरत का सहचर कौन था? शिशु। यानी नीचे તમે જોઈ શકો છો જોડકું બાળકી સંભાવનાએ જેના લેખક છે હરિવંશ રાય બચ્ચન અને કૃષ્ણ ભક્તિના લેખક છે મીરાબાઈ। तो अनुक्रमणिका इम्पोर्टेंट है, तैयार કરી દેજો। कृष्ण के साथ कौन कौन होली खेल रहा था? तो राधा और व्रज की अन्य नारियां। घर कहाँ बने हुए थे? नदी के किनारे। तारों के टूटने पर अंबर क्या नहीं करते? शौक नहीं मनाते। गोपिया कृष्ण की मुरली को क्या समझती है? अपनी सौत। एना पछी 3-4 वाक्य में उत्तर तमे जोई शको छो। कृष्ण कैसे होली खेल रहे थे? पाठ नंबर 1। गोपिया व्रज से क्यों भाग जाना चाहती थी? पाठ नंबर 3। बालक भरत ने क्रोधित सिंह से क्या कहा? पाठ नंबर 5। चीड़ वन में आंधियों की बात करने से क्या होगा? पाठ नंबर 9। कवि सच्चे मधु से जला हुआ शब्द का प्रयोग इसके लिए करते हैं तो पाठ नंबर 11 में तमने मળી जशे। मोटो प्रश्न તમે જોઈ શકો છો। कवि सोए हुए साथियों को तड़पती हुई गजल क्यों सुनाना चाहता है? पाठ नंबर 9। कृष्ण के वियोग में गोपिया किस प्रकार का स्वांग रचेगी? कैसे? पाठ नंबर 3 में मળી जशे। विभाग सी ग्रामर विभाग बहु इम्पोर्टન્ટ है, तैयार होवो जोईए। विडियोनी साथे ज क्रीड़ा एटले के खेल, दरख्त एटले के पेड़, विरुद्धार्थी हवे जोईए। समस्या तो समाधान, नाजुक तो कठोर। तत्सम रूप आपवानुं छे। पत्थरनुं थशे पाषाण અને પુરાનાનું થશે પ્રાચીન। પ્રત્યય અલગ કરવાનો પ્રસન્ન વત્તા તા અને બનાવટ બંધ વત્તા આવટ। शब्द समूह वेतन पर निर्वाह करने वाला वेतन भोगी, सबसे ऊंचा सर्वोच्च। अशुद्ध वाक्य ने शुद्ध करवानुं छे। इस शौक मानने की वक्त नहीं है तो यह अथवा तो ये अथवा तो यह शौक मानने की वक्त नहीं है तो मनाने का आवशे। मनाने का। ओके, मानने की जग्याए शुं आवशे? मनाने पछी कीनी जग्याए आवशे का। आटला 3 फेरफार करी दो। यह शौक मनाने का वक्त नहीं है। कहावत તમે જોઈ શકો છો। जो बीत गई सो बात गई। अतीत की दुख भरी बातें भूल जाना ही अच्छा होता है। अर्थ આપવાનો છે તમારે मुहावराનો। बद उड़ना यानी बदनामी होना और कगार पर का वृक्ष होना, मृत्यु के निकट होना। एक वाक्य में उत्तर सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ है जानकारी या ज्ञान की तकनीक। शिकायत कहाँ दायर की जाती है? हमारी बुक में તમને મળી जशे। स्पीड पोस्ट क्या है? तो तेज गति वाली डाक सेवा है। मनी ऑर्डर किसे कहते हैं? एक भुगतान का गारंटीकृत आदेश है। एनी पछी विभाग डी तमे जोई शको छो। पाછી संदर्भ व्याख्या तमने एक पंक्ति आपी हशे तमारा काव्यनी, तमारे समजाववानी रहेशे। एना नीचे पछी तमे त्रीजा भागमां संक्षिप्तीकरण करवानुं छे अने शीर्षक आपवानुं छे। तमे जोई शको छो अहींया अंडरलाइन करेली छे। एना नीचे पछी प्रश्नोना जवाब तमारे शोधवाना रहेशे, जे तमे जोई शको छो। अहींया पण चरित्रनुं ज पूछ्युं छे। लगातार त्रीजा पेपरमां आपणे चरित्र जोई रह्या छीए तो ए अहींया टीक करेलुं छे। तमे पहेला क्वेश्चन जोई लो एकवार तमे क्वेश्चन जोई लो अने फकरो पण जोई लो। अहींया हवे देखातुं हशे तमने। एनी आगळ मैं क्रम पण आपी दीधो छे कया प्रश्न कयो छे। हवे विभाग ई तमे जोई शको छो। अहींया पहेलुं तो छे एक वार्ता लखवानी छे, पछी आवे छे निबंध, मेरा प्रिय हिंदी लेखक, हमारे त्योहार और नदी का रौद्र रूप। અને અહીંયા મિત્રો તમારું હિન્દીનું પેપર સોલ્યુશન થાય છે પૂરું। 3 પેપરો આપણે જોયા છે, ખૂબ મહેનત કરીને સોલ્વ કર્યા છે બધા જ વિષયના, જે તમને ચેનલ પર મળી જશે દરેક વિષયના પેપર। એક લાઇક તો બને જ છે, વિડીયોને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો
આ તમામ ક્વેશ્ચન તમારે સારી રીતે તૈયાર કરવાના છે. એક પણ પ્રશ્ન છોડશો અને જો એ આવશે તો તમને પછી પસ્તાવો થશે. તો તૈયાર કરી દેજો. ચેનલ સાથે જોડાઈ જાઓ, ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી દો. મળીશું નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી ગુડ બાય.